about continuity. I hope that you have seen earlier lecture on continuity, and continuity is a further concept in limits, right? Yes. Limits में क्या होता है? Left hand limit and right hand limit. If these two are finite and equal, we say limits do exist, right? Yes. And if this value becomes equal to the value of function at that particular point also, which you are learning right from your childhood, then we say that the function is continuous. So in the last class, we have seen how we will define continuity at a certain point. Now, in this today's session, we're gonna look more into continuity. That means if let's say some kind of an interval is given to us, in that if we want to prove continuity, what we will do, that we will learn. So, if you haven't subscribed to the Vedantu JE channel yet, do it now because we guys are doing this series Jeet Lo 2021 for all the JE 2021 aspirants, and the guys who are in class 12th, they're gonna give their exam in January and April. तो मैं तो यही कहूंगा कि यार जनवरी वाले को ही टारगेट मान के चलते हैं, जनवरी वाले को ही टारगेट मान के चलते हैं, है ना, और इस एग्जाम को फोड़ते हैं, राइट? यस। ओके, मेरा नाम है अरविंद सुथार, जैसे बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे. दिस इज द कंप्लीट schedule which is being followed on the Vedantu JE channel. Harsh sir is taking your classes on of chemistry on Monday and Thursday at 9 p.m. Suri sir is taking classes on Wednesday and Saturday 9 p.m. I am taking your classes on Tuesday and Friday 9 p.m. Apart from this, we are having MCQ classes as well, as you guys can see on the screen right now. So daily at 9 p.m. where you should be on the Vedantu JE channel. Yeah. So if you haven't subscribed to this channel yet, do it now. And जो भी बच्चे मुझे already जानते हैं, they will hit the like button if they feel कि यार हाँ यार अरविंद सर जो भी पढ़ाते हैं मजेदार ही पढ़ाते हैं. और जो लोग नहीं जानते हैं, just watch this video completely. अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख के जाओ तो do hit the like button and share across your friends preparing for the same. All right, yes. But before that, I will tell you more about Vedantu. At Vedantu, we have given All India Rank 1 PWD category last year, 2019. AIR 697, All India Rank 41 as well. Top 100 के अंदर Vedantu had 7 students in the JEE 2019. 99 percentile plus JEE mains में लाने वाले बच्चे were 35 at Vedantu. 20 students were able to get selected into the KVPY. 56 students got 95 percentage in and more than that in CBSE 10th. Happy students learnt at Vedantu is 9,61,000 students so far. It's amazing to be a part of this. And 11 lakh, more than 11 lakh hours of live teaching Vedantu has done. 500 and plus cities Vedantu is working right now, and the average rating of the Vedantu paid sessions is 4.8, and this has been rated by all the students who are attending these classes. Definitely they had a wonderful experience on Vedantu paid platform. So in this regard, Vedantu has come up with pro subscription plan in which you can have access to all the live classes going on at Vedantu, assignments and notes, test series and analysis. By the way, in the Vedantu live interactive classes, dual teacher model is being followed. One teacher teaches and the other one clear doubts at every time. Okay, coming at every time. The classes are being taken on Vedantu patented Wave platform. The classes are interactive because there we can see each other. We can talk as well on audio, fun visualizations, quizzes and leaderboards which are part of class, by which you can see how many students are doing good than you, how are you doing in the class. So it's technology enabled platform. Assignments and notes, all the replays, class notes, study material you can access 24/7. Textbook solutions are provided. Test series to give you an upper edge over the other guys is all there in this particular course. 40,000 of hours of live teaching. 20 teachers से ज़्यादा पढ़ाते हैं already. 10,000 questions. English or Hindi batch you can select depending upon which language you want to learn.
continuous areas of reviews of areas of improvement, so that you can see where you need improvement, where you are making more efforts but not getting the output, so that you can work on your strategy. Micro courses and crash courses, all these are available at Vedantu with this pro subscription plan. Go on to this link, select your grade. If you are in class 11, JEE Main 2022. If you are in grade 12, JEE Main 2021. The 1 month subscription is available at 6,999 per month. 6 months is available at 5,666 per month. 6 months ka subscription is available at 4,667 per month. But 12 month ka subscription is available at just rupees 2,650 per month. And at this price, you can learn all the PCM required for JEE. And you don't need to do anything else. You don't need to consider कि यार हाँ मुझे यार और भी कुछ करना पड़ेगा क्या, नहीं, इसके अंदर आपका पूरे का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा एट दिस प्राइस ईयरली. दैट मीन्स कि ये कोर्स आपको 31799 में पड़ेगा एंटायर जेई का. सो you should go ahead with this course if you are looking for a course which can help you from the place, from your home. You can learn, you can replay any number of times you want to see videos, classes, everything. You can choose your own teacher who is teaching in the batch, right? 15% discount you will get if you are trying to try Vedantu. If you want to try Vedantu for a month, that also you can do. You can take 1 month subscription, which is available at rupees 6,999. But if you use the coupon code ASPRO, you can get 15% more discount, and you can get the course at this much rupees if you want to try Vedantu for a month. Okay, yes, let's move into the session, guys, and let's learn something amazing. Okay, we were doing continuity, and these are some of the basic things which we need to always remember regarding continuity. And that is what the first thing written over here is: polynomial functions are always continuous. Polynomials are what? Whenever the power of the variable is whole number. Variable's power is whole number, right? So all those polynomial functions are always continuous. They are always continuous. If you look at y equal to a to the power x, then the two graph comes. How many of you guys remember the graph of y equal to a to the power x? One is this graph, and another one is this particular graph which I am going to draw for you guys. Yes. The first graph is possible when the value of the a is greater than 0, and the second graph is possible when the when the a is more than 1 and when a is going between 0 to 1. This is exponential form, and in exponential form base should be constant and power should be variable. Okay, base constant, power variable. उसमें base constant भी positive होना चाहिए. So if the constant is between 0 to 1, your graph will form like this, and if your constant is greater than 1, your graph will form like this. And in both the cases, if you see, the graph is always continuous. If you look at y equal to L log of x to the base a, two kinds of graph comes. One is like this and one is like this. Can you tell me the first graph comes when a is greater than 1, and the second graph comes when a is between 0 to 1. So again here this a is a constant, right? And definitely we know that if this expression is defined, then this thing should be greater than 0 and not equal to 1. Yeah, okay. Y equal to mod x is also continuous everywhere. If you want to draw the y equal to mod x graph, it is v-shaped, victory shaped graph like this at origin. Yeah, and I hope that you know about y is equal to greatest integer of x and fractional part of x. They are continuous except every integer, because you know stairs types का graph आता है y equal to greatest integer of x का. So you guys can see there is a break at every integer, 1, 2, 3, and also here -1, this is 0, and something like this. Stairs आती है ऐसे graph में y equal to greatest integer of x. तो integers पर ये graph discontinuous है, otherwise everywhere positive. And similarly y equal to 10x कैसा आता है graph? The y equal to 10x graph comes something like this: right hand up, left hand down, and do some innovative kind of a bhangra. Yes, this line is pi by 2, this is minus pi by 2. So this graph is repeated because y equal to 10x का period pi होता है. I hope you people know, right? तो ये सारी की सारी चीजें continuous होती है at every point,
which I have mentioned. तो इनका प्रॉब्लम्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज आता है. तो we will learn through this question. let's say ये फंक्शन दिया हुआ है. बेसिकली कैलकुलस के अंदर मुझे ग्राफ बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. मैंने ग्राफ के ऊपर आपके वीडियोस किए थे वेरी बिगिनिंग, इफ यू गाइस रिमेंबर. तो अगर आप y इक्वल टू मॉड x माइनस 3 का ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ x इक्वल टू 3 पर वी शेप्ड बन जाएगा. जैसे मॉड x का ग्राफ x इक्वल टू 0 पर वी शेप्ड बनता है, तो y इक्वल टू मॉड x माइनस 3 का ग्राफ x इक्वल टू 3 पर वी शेप्ड बन जाएगा. अब मुझे बताओ कि यार आप इस ग्राफ को देख के बता सकते हो कि कंटिन्यूअस है या नहीं. मैंने बताया था आपको, ग्राफ अगर आपको बनाना है, आपने ग्राफ बनाया तो आपको कहीं पेन उठाने की जरूरत तो पड़ी नहीं, कहीं ब्रेक ही नहीं आया. आपने यहां से शुरू किया, यू ड्रू इट लाइक दिस एंड देन यू ड्रू वी शेप्ड. So it is continuous always, right? You don't need to lift your pen up. Hence, you guys can say that your graph is continuous at every point. So your graph is continuous at x equal to 3 is the correct answer. Basically, it is continuous everywhere. Now you understood that if you know the graphs, you can solve your questions very easily. But if you don't know the graphs, then you will have to go through the basic definition. Calculate left hand limit, calculate right hand limit, calculate the value of the function. If all these three are equal, you will say that your function is continuous at that particular point. So if you find out left hand limit, so you will say x tending to 3 minus this particular thing. 3 से just छोटा सा नंबर डालेंगे तो स्लाइटली नेगेटिव नंबर आएगा और बिल्कुल जीरो के आसपास ही होगा, तो ये जीरो. सिमिलरली राइट हैंड लिमिट जीरो, और सिमिलरली फंक्शन का 3 पर वैल्यू ये भी जीरो, तो आपका फंक्शन 3 पर कंटिन्यूअस होगा. हेंस बी फॉर बॉम्बे इज गोइंग टू बी योर आंसर. ओके, लेट्स डू द सेकंड थिंग. सिग्नम का ग्राफ कैसा बनता है? सिग्नम ऑफ समथिंग, अगर यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू +1 होती है. तो मुझे यार एक बात बताओ, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? जब भी x आपका 2 से बड़ा होगा तो x माइनस 2 विल बी पॉजिटिव, और जब भी x आपका 2 से बड़ा है तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इस फंक्शन की? 1 हो जाएगी. अच्छा, जब भी x आपका 2 होगा तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो सिग्नम ऑफ 0 का वैल्यू होता है 0. अगर आप यहाँ पर x से 2 से कोई भी छोटा नंबर डालोगे तो नेगेटिव नंबर बनेगा, और सिग्नम ऑफ नेगेटिव नंबर इज -1 ऑलवेज. तो क्या आपका ग्राफ ऐसा बन गया? अब मुझे बताओ, क्या आपका ग्राफ -इंफिनिटी से 2 तक तो हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, देखो लगातार बन रहा है, फिर 2 पर ब्रेक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 पर ब्रेक है, फिर 2 के बाद सारे पॉइंट के लिए लगातार बनता जा रहा है, तो क्या आपका ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2? यस, योर आंसर इज डन. If you know the graphs, then you can solve questions of continuity very easily. If you want to do it objectively, if you want to do it in the manner we used to solve it earlier, so whenever x is lesser than 2, this thing will be negative and signum of negative number will become negative. If you calculate at x equal to 2, so at x equal to 2, the value of signum 0 will become 0, and whenever x is greater than 2, this expression is positive and signum of positive number is nothing but 1. So we can see that left hand limit is coming out to be -1, right hand limit is coming out to be 1, and the function ka value at that particular point is coming out to be 0, hence the function is not continuous. Right? Easily question done. C is the correct answer. Now we know that how we can prove continuity at a certain point, but now we are going on to discuss continuity in an interval. Okay, let's say some interval is given to me like this a, b, and let's say somewhere over here is c. Okay, now we guys can see from this graph that between every point a to b, our graph is continuous. Yes or no? Because there is no break between a to b. Yes or no? Yes, we can see that there is a break at b, but between a to b there is no break. Yes or no? So if I have been talked about to check a continuity in open interval a to b, I just need to check every point between a to b, not including the boundary values, because here the boundary values are not included. But if I have been told to check continuity in the closed interval a to b, that means a and b also included. In that case, I will calculate three limits or three things. The first thing is I will check the continuity in the open interval a to b, like I was doing in the first case. Second thing, now we know that
that on the leftward sides of A there is no point. There is no point on the left of A, yes or no? Because A is the smallest point in this given interval. In this given interval, A is the smallest point. So in that case, what do? We calculate right hand limit only at A and the function ka value at x equal to A. Why? Because there is no left point to A, because A is the least point. Okay, yes. If we look at B, if we are looking at this interval, then B is the rightmost point. There is no point on the right hand side of B for which I need to check continuity. Hence, at this, just take the left hand limit. You don't need to evaluate right hand limit when x is tending to B plus, right? Why? Because B is the biggest point in the given interval. And just equate it with the value of the function at x equal to B. Your function will be continuous in this interval, closed interval A to B. So these three things you need to evaluate. Okay, now it is not necessary, as you guys can see, that if a function is continuous between closed interval A to B, that means B is the last point. That means B की right hand limit से मुझे मतलब नहीं है. तो अगर मेरा ग्राफ B के बाद में ऐसा बन रहा है, as you guys can see on your screens, कि B पर कंटिन्यूअस नहीं है आपका ग्राफ, तो भी वो ग्राफ आपका क्लोज्ड इंटरवल A से B के अंदर कंटिन्यूअस होगा. A very important point. We'll come on to this in some problems. Let's do some questions to understand this particular thing in detail. Okay, let's solve this particular question. We know that this is a linear expression, yes or no, and linear polynomial expression. We know that polynomial expressions are always continuous. Very beginning in the lecture I told you. Okay, this is also a polynomial 3. 3 is also a polynomial with degree 0, and this is also a polynomial 2x square. Yes or no? So wherever defined, these functions are continuous, but there is a break in the function at certain points. Yes or no? There is a break, or I can say that my function is piecewise defined. Piecewise defined. इस पीस में ऐसे डिफाइन है, इस पीस में ऐसे डिफाइन है, इस पीस में ऐसे डिफाइन है. तो जहां पीस वाइज डिफाइंड हो आपका फंक्शन, यू शुड चेक wherever definition is changing to find out the continuity of the entire function. Okay, yes. तो आपका फंक्शन कहां ब्रेक हो रहा है? x इक्वल टू 0 पर आपके फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो केवल आपका f x इक्वल टू 0 कंसर्न्ड पॉइंट है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं. तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो. लेफ्ट हैंड लिमिट इस एक्सप्रेशन से निकालेंगे, तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी? ओरली बताओ मेरे को. -1. यस और नो? अगर आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट किससे आ जाएगी? इस एक्सप्रेशन से आ जाएगी x इक्वल टू 0 पर. तो राइट हैंड लिमिट आ गई 0, और फंक्शन की 0 पर वैल्यू कितनी है? 3. क्या ये तीनों इक्वल है? अगर ये तीनों आपकी इक्वल नहीं है, तो आपका फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है. हेंस आपका आंसर कितना आ गया? डी फॉर दिल्ली. उसके अलावा हर एक पॉइंट पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है. क्यों कंटिन्यूअस है? अगेन आई एम टेलिंग यू, this is a polynomial expression. Polynomial expression is always continuous. So x lesser than 0 पे तो हमेशा continuous है. x equal to 0 पर वैल्यू 3 दिया हुआ है, again a polynomial, no problem. 2x square is again a polynomial. Polynomial functions are always continuous. So only worry was wherever the definition is changing. और definition कहाँ change हो रही थी? At x equal to 0. तो मैंने कहा केवल मुझे x equal to 0 पर continuity check करनी है, continuous है या नहीं. बाकी हर एक पॉइंट पर continuous है. तो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, फंक्शन की 0 पर वैल्यू निकाली. अगर तीनों इक्वल आती तो कंटिन्यूअस बोलता, नहीं आती है तो डिसकंटिन्यूअस बोलूंगा. हेंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. गॉट इट? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं. ये वाला प्रॉब्लम करेंगे. आपको दिया हुआ है कि आपका फंक्शन x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है. यहां पर थोड़ी सी टाइपिंग एरर है. x इक्वल टू 3 पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है. अगर आपका फंक्शन x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है, तो बिटवीन 0 to 3 आपकी ये डेफिनेशन है, राइट? तो पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस होगा. दिस इज अगेन अ पॉलिनोमियल, तो अगेन कंटिन्यूअस होगा 3 से 6 के बीच में. बट 3 पर आपकी फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है. पहले 0 से 3 के बीच में ये डेफिनेशन है, 3 से 6 के बीच में फंक्शन की डेफिनेशन ये है. तो डेफिनेशन चेंज हो रही है एट x इक्वल टू 3. तो x इक्वल टू 3 हमारा डाउट वाला पॉइंट आता है कि कंटिन्यूअस होगा या नहीं. लेकिन क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ऑलरेडी आपका 3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है. तो आप क्या बोलोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3 should be equal to right hand limit at x equal to 3,
एंड शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 3, तभी आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इस डेफिनेशन से लिखी जाएगी, तो 3 इंटू 3 -4, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, डायरेक्टली लिख दिया आपने। राइट हैंड लिमिट आपकी x प्लस 2k से लिखी जाएगी, तो 3 प्लस 2k, और f ऑफ 3 की वैल्यू तो 3 इंटू 3 -4 ऐसे ही है। तो ये दोनों एक्सप्रेशन को इक्वल करवाओ, k की वैल्यू आनी चाहिए क्योंकि आपका फंक्शन x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस दिया हुआ है। तो जस्ट फाइंड आउट दिस वैल्यू, यू विल गेट योर आंसर। 9 minus 4 is 5, 5 minus 3 is 2. I think k का value is coming out to be 1. Yes or no everyone? Is it easy everyone? Easy है कि नहीं है? जल्दी से मुझे बताना। B for Bombay is the correct answer. Yes, absolutely. चलो ये क्वेश्चन करते हैं बच्चों। you have learned some expressions like this. फंक्शन के अंदर फंक्शन याद आ रहा है ना? कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस के अंदर मैंने पढ़ाया था ये फंक्शंस टॉपिक के अंदर। यस, तो इस फंक्शन की मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 2। इस फंक्शन की मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 2। सारे के सारे बच्चे ट्राई करेंगे। अब एक तरीका तो क्या होता है, बच्चे बोलते हैं सर पहले ये f ऑफ x दिया हुआ है, ये g ऑफ x दिया हुआ है, तो मैं f ऑफ g ऑफ x निकाल लेता हूं, फिर कंटिन्यूटी चेक करूंगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो rather what we will do, in order to check the continuity of this function, what do we do, हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है एट x इक्वल टू 2, राइट? तो मैं निकालता हूं। अब मुझे बताना कि क्या इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट को, कि मुझे f ऑफ g ऑफ x की 2 से जस्ट पहले वैल्यू निकालनी है, तो मुझे ये चीज निकालनी है। यस और नो? अगर मुझे राइट हैंड लिमिट निकालनी है इस फंक्शन की एट x इक्वल टू 2, तो मुझे ये चीज निकालनी है। कैन आई से दिस? 2 से जस्ट बाद में उसकी वैल्यू क्या आ रही है। और अगर मुझे फंक्शन की 2 पर वैल्यू निकालनी है, तो मैं लिखूंगा f ऑफ g ऑफ 2। यस और नो? f ऑफ g ऑफ 2 तो निकालना सभी बच्चों को आता होगा। g ऑफ 2 कितना आ रहा है पहले मुझे ये बता दो। g ऑफ 2, अब g ऑफ 2 तो सर इस डेफिनेशन से लिखेंगे, तो g ऑफ 2 तो सारे के सारे बच्चे निकाल लेंगे बड़े जल्दी। 2 इंटू 2 माइनस 2 बोले तो 2 आ गया, राइट और नो? ये तो सभी बच्चों को आता ही है ना? यस, तो 2 इंटू 2 माइनस 2 बोले तो 2 आ गया। लेकिन ये दोनों चीजें कैसे निकाली जाए, 2 से जस्ट बाद में और 2 से जस्ट पहले, यही तो निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की 2 पर वैल्यू। तो ये तीन चीजें मुझे निकालनी है। अगर इक्वल आ गया तो कंटिन्यूअस है, नहीं आया तो डिसकंटिन्यूअस है। तो 2 से जस्ट पहले निकालते हैं। तो पहली बात तो मुझे बताना बच्चों, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब g की 2 से जस्ट पहले, 2 से जस्ट पहले g की डेफिनेशन ये है, तो 2 से जस्ट पहले g की डेफिनेशन मतलब g की वैल्यू कितनी आएगी वो मैं इससे निकाल सकता हूं। तो 1 से स्लाइटली छोटी आएगी। यस और नो? बिकॉज 2 से जस्ट पहले आपकी g की डेफिनेशन कौन सी है, 2 से जस्ट पहले आपकी g की डेफिनेशन ये वाली है, तो x माइनस 1 आएगी। तो 2 से जस्ट छोटा यानी 1.9999 समथिंग है, माइनस 1 अगर आप करोगे, क्योंकि x माइनस 1 फंक्शन की डेफिनेशन है, तो 1.9999 माइनस 1 करोगे आप, तो 0.9999 यानी 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू आएगी। यस और नो? अब आप क्या f ऑफ 1 माइनस की वैल्यू निकाल सकते हो। जब भी आपका x 1 से थोड़ा सा छोटा है, 1 से थोड़ा सा छोटा है, तो आपकी डेफिनेशन ये है 2x माइनस 1। तो 2 इंटू 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू -1, तो क्या ये वैल्यू आपकी स्लाइटली 2 इंटू 1 -1 यानी 1 से थोड़ी सी छोटी आ जाएगी। यस और नो? यानी कि ये आपकी 1 हो गई। अंडरस्टूड दिस पार्ट और नॉट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से सभी को आ गया होगा। और सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट यानी पहले तो g ऑफ 2 प्लस, यानी जब x 2 से ज्यादा है थोड़ा सा, तो g की वैल्यू कहां जा रही है, 2 से ज्यादा है तो ये डेफिनेशन, तो 2 से ज्यादा पर तो इसकी वैल्यू 2 इंटू 2 प्लस माइनस 2 यानी कि 2 से थोड़ी सी बड़ी आ रही है। यस और नो? तो आपको f ऑफ 2 प्लस निकालना है। अब f ऑफ 2 प्लस यानी ये इनपुट 2 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो ये कब हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो क्या इसकी वैल्यू 7 आ रही? हाँ जी सर। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल आई? नहीं आई, यानी आपका फंक्शन x इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यूअस होगा, राइट? आप इसको सबसे जल्दी ऐसे कर सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूं बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट? अच्छा, मैं इसमें एक चीज बता देता हूं, x प्लस a रूट 2 साइन x, x पॉलिनोमियल है। हाँ जी सर, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस।
a रूट टू साइन एक्स, साइन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, ऐसा ग्राफ बनता है उसका, हमेशा कंटिन्यूअस ग्राफ बन रहा है, हाँ जी सर, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कंटिन्यूअस ही रहेगा, दो कंटिन्यूअस फंक्शंस को आप ऐड करोगे तो कंटिन्यूअस ही तो आएगा, यानी ये चीज तो आपकी हमेशा ही कंटिन्यूअस है, वेर एवर डिफाइंड, यानी बिटवीन 0 टू पाई बाय 4 हमेशा कंटिन्यूअस है। सिमिलरली ये वाली वैल्यू आपकी पाई बाय 4 से पाई बाय 2 हमेशा कंटिन्यूअस है, सिमिलरली ये पाई बाय 2 से पाई में हमेशा कंटिन्यूअस है, बट आपको चेक कहां करना है, जहां पर भी फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, यानी पाई बाय 4 पर आपकी फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है और पाई बाय 2 पर आपकी फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, उन दोनों वैल्यूज पर आपको चेक करना है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो आपको ए और बी का वैल्यू बताना है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की पाई बाय 4 पर वैल्यू इक्वल करानी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की पाई बाय 2 पर वैल्यू इक्वल करानी है, ए और बी की वैल्यू पता करनी है। दिस इज द क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज होमवर्क, यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो द वीडियो। ओके, यस, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, जेई मेन 2019 का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगर किसी को क्वेश्चन, आई होप सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। तो ये पहला वाला मॉड एक्स है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, this is x and this is mod x and this is mod x and greatest integer of x once again, okay, yes। तो सबसे पहली बात तो बच्चों, ये वाला फंक्शन को देखो मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, मैं जानता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा हर एक इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होता है, यस और नो। तो सबसे पहले -1 से 1 जो x जा रहा है मैं उसको ब्रेक करता हूं, -1 से 0 में ब्रेक करता हूं। अगर -1 से 0 मेरा x जा रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना हो जाएगा बेटा मेरा, अगर x मेरा -1 से 0 जा रहा है -1 होगा, यस और नो। और अगर मैं मॉड x की वैल्यू लिखना चाहता हूं और x मेरा नेगेटिव है तो माइनस के साथ खुलेगा मॉड्यूलस, तो क्या मेरी फंक्शन की वैल्यू जब भी x मेरा -1 से 0 के बीच में होगा वो क्या -x से -x-1 हो जाएगी, जब भी x मेरा 0 से 1 के बीच में है यानी यही इंटरवल, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी और मॉड x की वैल्यू मेरी x हो जाएगी, यस और नो। तो मेरा मॉड x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x x हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, जब भी x मेरा 1 से लेकर के 2 के बीच में है तो मेरी मॉड, यहां पे ये वाला एक्सप्रेशन मेरा कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ x को मैं मॉड के साथ खोलूंगा बिकॉज माई x इज पॉजिटिव, तो x प्लस x यानी 2x हो जाएगा, ओके। और तीसरी डेफिनेशन, जब भी मेरा x 2 से 3 के बीच में है, 2 से 3 के बीच में है, तो 3 पर ओपन लगाया अभी मैंने, तो मैं जानता हूं कि मेरी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी और मॉड x की वैल्यू तो x ही होगी यानी ये x प्लस 2 हो जाएगा। और एट x इक्वल टू 3 मेरा क्या हालचाल हो जाएगा देख लेते हैं जरा, एट x इक्वल टू 3 मेरा आंसर हो जाएगा x प्लस 3, यस और नो एवरीवन टेल मी। ये चीज सभी को क्लियर है, क्या हम अपने फंक्शन को ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा अब देखो जरा ध्यान से, पॉलिनोमियल है कंटिन्यूअस होगा, पॉलिनोमियल है कंटिन्यूअस होगा, पॉलिनोमियल है कंटिन्यूअस, पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस, पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस, यानी जहां जहां बाउंड्री पॉइंट्स आ रहे हैं वहां वहां मेरे को डाउट है, केवल जहां पे मेरे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो मुझे कहां कहां डाउट हो गया, 0 पर डाउट हो गया, 1 पर डाउट हो गया, 2 पर डाउट हो गया, 3 पर डाउट हो गया, यस और नो। अच्छा कुछ बोलेंगे सर ये -1 और 3 ये भी तो बाउंड्री है, इन दोनों को भी इंक्लूड कर लो, चलो इन दोनों को भी इंक्लूड कर लिया, ठीक है, -1 और 3 दोनों को include। चलो 0 पर अगर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो फर्स्ट डेफिनेशन से यूज होगी, तो -1 लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट मेरी आ रही है 0 यानी 0 पर तो मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्यों, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी आ रही है -1, राइट हैंड लिमिट आ रही है मेरी 0, देखो जरा ध्यान से, यस। चलो फिर x इक्वल टू 1 पर बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी आ रही है 1, देखो, और राइट हैंड लिमिट मेरी आ रही है 2, अगेन डिसकंटिन्यूअस। एट x इक्वल टू 2 बात करते हैं, अगर x इक्वल टू 2 बात करेंगे तो x इक्वल टू 2 पर मेरे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, सॉरी 4 आ रही है, x इक्वल टू 2 पर मेरे फंक्शन की वैल्यू 4 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 4 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी मेरी 4 आ रही है, यानी 2 पर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अच्छा
फिर 3 पर बात करते हैं। 3 के आगे कोई पॉइंट है ही नहीं डोमेन के अंदर, तो राइट हैंड लिमिट तो निकालूंगा ही नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट इससे निकालूंगा 5 आ रही है, और फंक्शन की 3 पर वैल्यू निकालूंगा 6 आ रही है, यानी 3 पर मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। x इक्वल टू -1 इज द लीस्ट पॉइंट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा ही नहीं, -1 पर वैल्यू निकालूंगा तो 0 आ जाएगी, और अगर राइट हैंड लिमिट में निकालूंगा तो 0 आ जाएगी, यानी यहां पर भी मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो मेरा फंक्शन कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो गया? 3 पॉइंट पर हो गया। यस, तो डी फॉर दिल्ली विल बी माय आंसर। अगेन आई एम रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट। -1 और 3 दीज आर टू बाउंड्री वैल्यूज। तो -1 इज द लीस्ट वैल्यू, मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है ही नहीं, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा और फंक्शन की -1 पर वैल्यू निकालूंगा, और देखो इक्वल आ रही है, तो फंक्शन आपका -1 पर कंटिन्यूअस है। फिर 0, 1 और 2 और 3, ये और पॉइंट्स मेरे डाउटफुल हो गए। 0, 1, 2 क्यों हो गए? क्योंकि इंटरवल चेंज हो रही है, वहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। और x इक्वल टू 3 क्यों? क्योंकि वो बाउंड्री पॉइंट है। तो 0 पर मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, तो 0 to 1 वाली डेफिनेशन से निकाल, सॉरी -1 से 0 वाली डेफिनेशन से निकालूंगा। वो कितनी आ रही है मेरे पास? -1। राइट हैंड लिमिट मेरी आ रही है 1, दोनों ही इक्वल नहीं है, तो डिसकंटिन्यूअस ही होगा फॉर श्योर। सिमिलरली 1 पर मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, 1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट निकाली 2 आ रही है, नॉट इक्वल, डिसकंटिन्यूअस। x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, 4 आ रही है, राइट हैंड लिमिट निकालता हूं, 4 आ रही है, और फंक्शन की 2 पर वैल्यू भी 4 आ रही है, तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। x इक्वल टू 3 इज द राइट मोस्ट पॉइंट, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे ही नहीं, 3 पर वैल्यू निकाली, तो 3 पर फंक्शन की वैल्यू 3 + 3 6 आ रही है, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? 5, यानी नॉट इक्वल, हेंस आप कहोगे डिसकंटिन्यूअस। तो 3 पॉइंट्स हो गए 0, 1 और 3 जहां पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, हेंस द आंसर इज डी फॉर दिल्ली। Yes, this was asked in JEE Main 2019. So I hope that you have learned some things from this session, and if you are willing to join Vedantu and you want to prepare your JEE preparation like a boss, then you can have a Vedantu Pro subscription in which live interactive classes will happen. Fun visualizations, quizzes and leaderboards will be there in the classes. Dual teacher will be there so that you can clear all of your doubts. Here on YouTube it is difficult because a lot of students are there and it is not easy to see the doubt of each and every student. Hence we follow dual teacher model in our patented platform classes. You guys can access all the replays, class notes, study materials 24/7. Important textbook solutions are provided. Test series and analysis all are provided. 40,000 hours of live teaching will be there. 20 plus teachers will be teaching you with having an experience of 5+ years. 10,000 से ज़्यादा questions आपको मिलेंगे so that you guys can score your best in the JEE examination. English or Hindi, you can choose language whichever you want to learn in. Continuous reviews for your areas of improvement. Micro and crash courses all are available. Go onto this link and go through the course now, because the course is available at just ₹2650 per month. Yes, मुझे लगता है इतनी तो आपकी एक ट्यूशन की फीस ही हो जाएगी किसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो आप स्कूल लेवल का पढ़ोगे उसकी भी। हेंस आपको एंटायर वेदांतु जेई का प्रो सब्सक्रिप्शन पूरे साल भर के लिए मिलेगा 31799 पर। तो मैं तो कहता हूं इससे सस्ता आपको जेई का कोर्स कभी मिल ही नहीं सकता। सो गो अहेड विद दिस यार, व्हाई यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर जेई, तुम कर सकते हो, मैं हमेशा कहता हूं। एंड मैंने देखा है कि कुछ बच्चे पहले मुझसे यूट्यूब पे पढ़ते थे और आज की डेट में मैं उनकी प्रो सब्सक्रिप्शन में क्लासेस ले रहा हूं, एंड दे आर इंप्रूविंग ट्रेमेंडसली, ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट इज देयर। एंड आई ऑलवेज टेल व्हाट, टाइम की कीमत है और किसी चीज की कीमत नहीं है, टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करो। यस, बट अगर आप वेदांतु ट्राई करना चाहते हो, आप पहली बार अगर वेदांतु प्लेटफॉर्म देख रहे हो एंड यू वांट टू ट्राई, तो आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो विच इज अवेलेबल एट ₹6999। बट अगर आप ये सब्सक्रिप्शन अभी लेते हो तो यू गाइस कैन हैव 15% डिस्काउंट इन दिस। ASPRO इस द कूपन कोड, अगर आप अप्लाई करेंगे तो 15% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो अगर आप वेदांतु 1 महीने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये कोड लगाना ना भूलें, इससे आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप ये कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, बट वेदांतु का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पर असाइनमेंट्स, नोट्स और डेली अपडेट्स सब आपको मिलते हैं। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर अक्रॉस योर फ्रेंड्स। अगर आप इस वीडियो से सीखे, सब्सक्राइब करो चैनल को, वेदांतु जेई चैनल को, बिकॉज हियर the team of IITians is working day in and day out so that you guys can also become IITians and you guys can make your dreams into a reality. Hence crack JEE। तो इसी के लिए हम सीरीज कर रहे हैं जीत लो 2021 एंड जीत लो 2022। तो आई होप आप सभी पढ़ाई के मजे उठा रहे हो और घर बैठ के बिंदास पढ़ो वेदांतु के साथ, बिकॉज एट वेदांतु हम कोई भी डाउट रहने नहीं देते हैं। Hence why guys also call me DD sir। So see you all who are interested in the paid classes at Vedantu, because the time is limited. Make most out of this and
chase your dreams. See you in the next session. Bye bye, take care, love you all, enjoy.